Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. This is Shikha, your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English. In Verbal Ability series, today's topic is prepositions. We'll cover then this video. सबसे पहले देखते हैं prepositions क्या होती हैं. Prepositions are words which shows the relationship between two words in a sentence. क्या show करते हैं? Relationship दो words के बीच में एक sentence में. They are very important in English grammar. The rules of the preposition and its uses play a prime role in written English. Because where the relationship is important means you have placed the word, but if the words are not related in any manner, so it will not form a मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट. तो प्रीपोजिशन सेंटेंस को एक मीनिंग देती हैं, उनको जोड़ने का काम करती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाती हैं. प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट नाउन प्रोनाउन एंड कनेक्ट नाउन प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन एनी सेंटेंस. कनेक्ट करती हैं डिफरेंट वर्ड्स को. वर्ड्स क्या हो सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस किसी भी सेंटेंस के. द रिलेशनशिप कैन इंक्लूड डायरेक्शन, प्लेस और पर्टिकुलर पॉइंट और लोकेशन, टाइम, मैनर, कॉजेज और अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप किस तरह का हो सकता है? दैट रिलेशनशिप कैन बी in the form of or related with in direction, place, then time, manner, cause, amount. किसी भी तरह से, किसी भी place से, किसी भी time से relationship जब बनाना होता है, preposition का use किया जाता है noun, pronoun या किसी group of the words को connect करने के लिए. The preposition is almost always before the noun or pronoun and hence it's called preposition. अगर आप इसको word को split करोगे तो position everybody know. Position means the thing that we are placing at some point. ठीक है, कहीं आप place कर रहे हो. Pre is called पहले. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, preposition noun या pronoun से पहले आती है. Some example of prepositions are illustrated below. The ball is below your bat. ये रहा pronoun और ये रहा noun, उससे पहले आया है. Below is a preposition which shows the place. यहाँ पे below क्या relationship बता रहा है? जो हमने relationship पढ़ा था, इसमें कौन सा relationship है? place का relationship आ रहा है, जो बता रहा है किस preposition से? below से. He came by bus. By is a preposition which shows the manner. यहाँ पे by क्या बता रहा है? manner मतलब किस तरह से, किस manner में आया है. तो by bus मतलब किस तरीके से आया है, वो यहाँ पे बताया गया है. So preposition can show the relationship in any manner, time, place, cause or amount. Now see forms of preposition. There are 5 forms of preposition. Simple preposition, compound. Form का मतलब तरीके, मतलब आप preposition को कितनी तरीके से यूज कर सकते हो या उसके कितनी तरह के रूप होते हैं. ठीक है, अलग अलग रूप में हम इसको यूज करते हैं. Simple prepositions are used in simple sentences. Simple है तो simple में यूज किया जाएगा, like in, on, at, to, from, with, by, etc. I am not coming with you. This is simple preposition. Next is compound, where the compound word is coming always means it's two, combination of two. When we join two connecting nouns, जब दो nouns को जोड़ते हैं, pronouns को जोड़ते हैं या phrases को जोड़ते हैं, we use compound preposition. उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, like about, across, among, between, beside, before, etc. I will reach there before she leaves. यहाँ पे I pronoun, she pronoun and here will reach there before she leaves. यहाँ पे दो phrases, यहाँ पे क्या बोलेंगे? दो phrases को connect किया गया है, किससे? before से यहाँ पे connect किया गया है. ये simple है, I am not coming with you. This is simple sentence. This is compound sentence. Why she leaves, this is other part, another phrase, and I will reach there, this is another part. दोनों अलग अलग part हैं, दो clause हैं sentence के जिनको जोड़ा गया है before से. That's why it will be called compound preposition, जो दो phrases को जोड़ रही है. Next is double preposition is two words used in sentences to connect nouns. इसका मतलब क्या होता है? डबल प्रीपोजिशन मतलब टू, यानी कि ये किसी कनेक्ट कर रही है नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेजेस को विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड, बिकॉज ऑफ, एटसेट्रा. डबल में डबल होंगी. एक ये प्रीपोजिशन हो गया, आउट ऑफ ये हो गया, फ्रॉम, बिहाइंड मीन्स हर प्रीपोजिशन में डबल वर्ड्स होते हैं. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट दे वेंट टू स्कूल. बिकॉज ऑफ यू, दिस
इज द प्रीपोजिशन विच टाइप, डबल प्रीपोजिशन, ठीक है, किसको जोड़ रही है, इट वॉज जस्ट यू, ठीक है, प्रोनाउन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ रही है। यहाँ पे कौन सी है, टू वर्ड्स है इस प्रीपोजिशन के, दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट वंस, एक साथ यूज हो रही है बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन व्हेन अ पार्टिसिपल एन, एंड और आईएनजी वर्ब इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, इट इज नोन एज द पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल्स आर रिलेटेड विद वर्ब, वर्ब में आपकी एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकेंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है और एक होती है फोर्थ फॉर्म, राइट। तो इसको आप बोलते हो पास्ट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म हो जाती है आपकी, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म होती है ये हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म में होता है, और ये जो होता है फोर्थ फॉर्म वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज बेसिकली टेल्स यू अबाउट द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज रिलेटेड विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड थर्ड फॉर्म तो आप लोग जानते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म, तो जो भी प्रीपोजिशन इन फॉर्म में आती है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। कंसर्निंग, पेंडिंग, कंसीडरिंग, अज्यूमिंग, bearing, during, given, not here is not with the standing, provided, regarding। अब देखो यहाँ पे ये past participle है, ये present participle है, again this is past participle, this is present participle and it is coming in the preposition form। I think I can do it easily considering my knowledge। Here considering is coming as a participle preposition here in the present participle or fourth form of the verb। इसको आप क्या बोलोगे, considering क्या है, fourth form of the verb है, yes। ये किस तरह की preposition है, participle preposition है। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड जितने भी वर्ड हैं उनको participle form में आप बना सकते हो, ये प्लेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपने उसको कहाँ पे प्लेस किया है सेंटेंस में, वो क्या चीज कन्वे कर रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बताता है। प्रीपोजिशन क्या करती है, रिलेशनशिप बता रही है। तो हियर आई थिंक आई कैन डू इट इजीली मतलब मैं ये कर सकता हूँ कंसीडरिंग माई नॉलेज, मेरी नॉलेज को देखते हुए। तो क्या किया, उसकी जो एजम्पशन है कि मैं ये कर सकता हूँ एबिलिटी, उसको नॉलेज से कनेक्ट करने का काम किया, तो ये प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल। Phrase preposition, a prepositional phrase is a group of words containing preposition, a noun, pronoun, object of the preposition and any modifiers of the object। phrase का मतलब ही होता है group of the words, ठीक है। तो group of the words में क्या क्या हो सकता है, noun हो सकता है, pronoun हो सकता है, object of the preposition या कोई भी modifier हो सकता है object का। according to, in spite of, phrase preposition में अगर ये group of the words है तो obviously more than one word तो होगा ही। तो इसमें one word, two word या three वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड से ज्यादा होता है, टू या थ्री वर्ड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू, it's a phrasal verb, in spite of, on account of, in front of, in order to, for the sake of, by means of, with reference to, in addition to, due to, etc। according to me, ये यहाँ पे आया according to, ये हमारा आया ये phrasal preposition। there are three members of this company। so according to, there are three members of company, according to is a kind of phrase preposition। here I told you about different forms of preposition but it is not very much necessary to know। मैंने आपको एक तरह से बता दिया कि प्रीपोजिशन को किस तरह से यूज किया जाता है, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। नहीं तो हम उसको सिर्फ वर्ब या एडजेक्टिव या फ्रेज इस तरह से बोलते हैं। नो, प्रीपोजिशंस के ही यूज होते हैं जो अलग अलग तरह से होते हैं, एंड दैट शुड बी नोन इफ यू आर रीडिंग एनी ऑफ द सेंटेंस कि ये वर्ड उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, मेनली ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स। प्लेस, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट एंड पोजीशन। अभी हमने फॉर्म पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, फॉर्म की कितनी तरह से आप यूज कर सकते हो प्रीपोजिशन को, ठीक है। अब कितनी तरह की होती हैं, फॉर्म और काइंड्स में डिफरेंस होता है, टाइप्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट एंड पोजीशन। सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देयर आर 3 प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। पहली मीन्स पर्टिकुलरली इट्स वेरी ऑल क्लियर, ठीक है। आप याद रखेंगे प्लेस के लिए 3 तरह की हैं, एट, इन एंड ऑन। यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ प्लेस। क्या याद रखना है हमको, एट, इन, ऑन, ये तो याद हो जाएगा, बट इसको यूज कैसे करना है। जहां पे एट है वहां पे आप ऑन भी लगा सकते हो, जहां पे ऑन है वहां एट भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कन्वर्सेशन में भी नहीं, और जहां तक रिटन का पार्ट है या आपके एग्जामिनेशन फाइटिंग का पार्ट है उनमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एट यूज होती है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, इन यूज होती है यूज फॉर द स्पेसेस, और ऑन यूज होती है सरफेस के टॉप पे,
ठीक है, यानी कि आप मानो एट ये एकदम पॉइंट पे होता है, ऑन ये हुआ, ठीक है, ऑन हुआ सरफेस पे और इन हुआ उसके अंदर यानी कि स्पेस में अंदर। अभी देखते हैं एट द एंड ऑफ द पेज यानी कि बिल्कुल पॉइंट, एट द कॉर्नर होम, एट द साइड, एट द एग्जिट और एंट्रेंस, एट वर्क और एट स्कूल। एग्जैक्ट आपको प्लेस, एट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल पॉइंट ऑफ द प्लेस इट इज टेलिंग यू। नेक्स्ट इज इन महाराष्ट्र, इन अ मॉल, इन अ बिल्डिंग, इन द स्काई, इन द हॉल, इन द पॉकेट, इन द न्यूज़पेपर। सो इट इज गिविंग यू सम स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर जो भी चीज होगी दैट विल कम इन वो आपको बताएगा प्लेस। देन ऑन द टेबल, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द बस, ऑन द राइट और लेफ्ट, ऑन द मोटर कार, ऑन द पेज, ऑन द रेडियो, ऑन द वे। ये क्या है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऑन द टेबल मतलब टेबल की सरफेस के ऊपर, ऑन द कंप्यूटर के ऊपर, बस के ऊपर, राइट या लेफ्ट में, मोटर कार, पेज के ऊपर। ये सरफेस, पूरा सरफेस कवर कर सकती है कहीं भी, एट एनी प्लेस, बट एट कहीं एक पॉइंट पे ही आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, एट द सरफेस। सरफेस बहुत बड़ा होता है, नॉट अ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोजिशन ऑफ द टाइम। कितनी तरह की होती हैं, दो होती हैं टाइम के लिए, एट एंड इन, ठीक है, सेम थी लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। कैसे, एट इज यूज टू इंडिकेट द प्रिसाइज टाइम, एट नाइट, इन द एक्सेप्शन इज दिस रूल। प्रिसाइज अगेन यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एग्जैक्ट। तो ये आप ये याद रखो, जहाँ पे भी एट आएगा, इफ इट इज कमिंग फॉर प्लेस, पॉइंट ऑफ द टाइम, इट इज कम, इफ इट इज कमिंग फॉर द टाइम, इट इज अगेन प्रिसाइज, बहुत बिल्कुल एक्यूरेट टाइम, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन is called, it is not considering or it is not accepting the rule। ये रूल्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ये मतलब हम इन नाइट नहीं बोलते, एट नाइट बोलते हैं हमेशा, ये एक्सेप्शन है। एट 10 o'clock बिल्कुल प्रिसाइज टाइम हो गया ना, एग्जैक्ट टाइम। एट 4:30 AM प्रिसाइज टाइम। एट द मोमेंट, दिस टाइम, और एट सनराइज और नून, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जो बिल्कुल एक ही है। 4:30 एट 1 सिर्फ एक ही बार होगा, 10 o'clock सिर्फ एक बार होगा, एट दिस मोमेंट ये भी एक ही बार होगा, वंस इन अ टाइम। सनराइज या नून ये भी एक ही बार होगा, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वंस, जो कैसे होते हैं, हैपेंड वंस, बिल्कुल एक बार जो चीजें होती हैं उसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट, राइट। मैं क्लियर लिख देती हूं यहां पे, हैपेंड वंस, अब एक दिन में हो एक बार, महीने में एक बार, कैसे भी एक बार, ठीक है। अभी इन देखो, यूज टू इंडिकेट अ टाइम पीरियड। पीरियड का क्या मतलब हो गया, अ काइंड ऑफ प्रोसेस, मान सकते हो पीरियड, थोड़ा इसका बिगिनिंग और स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग और एंड होता है ना, तो प्रोसेस हो गया ना, थोड़ा सा पीरियड हो गया, ये पॉइंट नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इट्स अ एक्सेप्शन, यहाँ पे पहले ही बता दिया है एक्सेप्शंस क्या है, इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एक्सेप्शंस ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं इन जनवरी, जनवरी इज हैविंग 31 डेज, बहुत लंबा समय होता है, तो यहाँ पर जितने भी हैं आपके किसी भी पीरियड में हो सकता है। इन 90s के ईयर का टाइम है, इन 2015 इन द सेंचुरी, तो एक पीरियड, एक प्रोसेस हो गया, पॉइंट या एग्जैक्ट टाइम नहीं हुआ। इट्स वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन में दो तरह की होती हैं जो बताती हैं अंडरनीथ और ओवर, बिलो, बीनीथ एंड अबव। यूज टू इंडिकेट पोजीशन दैट इज वर्टिकली डाउन और वर्टिकली टॉप। वर्टिकली का मतलब ये हुआ ना, ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकली डाउन जो नीचे होती है, नीचे के लिए आता है अंडर, अंडरनीथ एंड ओवर, ठीक है। वर्टिकली या तो ओवर का मतलब ऊपर होगी लेकिन ऐसे होगी वर्टिकली, या नीचे होगी तो भी वर्टिकली होगी। द बॉल वेंट अंडर द डोर, यहाँ पे क्या आया है, द बॉल वेंट अंडर द डोर। अब बॉल तो राउंड होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने नीचे के लिए लिखा है अंडर द डोर, क्योंकि बॉल हमेशा ऐसी रहेगी, उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं कर सकते। द फाइल इज अंडरनीथ द पैकेज, द फाइल इज अंडरनीथ द पैकेज, यानी कि जो फाइल है वो हमारी पैकेज के नीचे है, अंडरनीथ है। यहाँ पर इस तरह से है हमारी फाइल यहाँ पर। द एयरप्लेन वेंट ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर जाना। द एयरप्लेन वेंट ओवर द क्लाउड्स, उसके ऊपर जाना यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट इज बिलो, beneath एंड above, यूज टू इंडिकेट द पोजीशन दैट इज लोअर और हायर। यहाँ पे बताते हैं अच्छा ये वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन का मतलब ये हुआ कि यस दिस इज टचिंग समथिंग, मतलब वो उसके अंदर है। अब जैसे फाइल पैकेज के नीचे है तो ठीक है, तो फाइल जहाँ पे भी होगी पैकेज के नीचे तो वो टच करेगी। अब बॉल अगर अंडर में है, नीचे है, तो उसको
उसको आप बोल सकते हो अंडर या beneath कि वो उसके अंदर है, बैड ने उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यूज टू इंडिकेट द पोजीशन लोअर और हायर। यहाँ पर ये पोजीशन हुई, जो आपके पहले वाला था उसमें ये पोजीशन हुई, जैसे पैन इज अंडर द हैंड, ठीक है, ये हुआ। बट यहाँ पे जो आपकी पोजीशन बता रहा है बिलो, बिलो का मतलब ये हुआ, दिस हैंड इज हायर, दिस हैंड इज लोअर। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं पोजीशन। आई सॉ हिम स्टैंडिंग बिलो द बिल्डिंग। यहाँ पे बिलो आएगा, यहाँ पे अंडर नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज बिल्डिंग इज वेरी टॉल, और वो कहाँ है? बिलो, बिलो द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग से नीचे है, यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट आ जाता है। वी सैट बीनीथ द एप्पल ट्री। बीनीथ या अंडर द एप्पल ट्री आप बोल सकते हो, यहाँ पे बिलो द एप्पल ट्री, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बीनीथ और बिलो आएगा, बिलो द एप्पल ट्री। वाई? बिकॉज एप्पल ट्री एज एट द हायर पोजीशन देन यू। आप नीचे बैठे हो, वो हायर पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्पल ट्री। दे स्टे अबव द शॉप। यहाँ पे क्या? अबव द शॉप यानी कि शॉप के ऊपर जो टेरेस है या जो ऊपर की बिल्डिंग है वहाँ पे है। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ। अंडर में कोई भी चीज़ है तो वो कवर हो रही है, ठीक है, दैट इज कवरिंग द सरफेस। और यहाँ पे जो चीज़ है बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, बिलो द बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग उसके ऊपर है, नहीं, बिल्डिंग के नीचे खड़ा है यानी कि उसके पास में है। यू कैन सी द बिल्डिंग एंड यू कैन सी द हिमसेल्फ अलग अलग। अभी बॉल बैट के अंदर है तो उसको सरफेस ने कवर कर रखा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो, अंडरनीथ, बीनीथ। यहाँ पर ये जो है इन दोनों का सेम यूज होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है बिलो और बीनीथ में। ओवर का मतलब कवरिंग द सरफेस एंड अबव का मतलब ऊपर, यानी कि आप टच हो रहे हो उससे। अबव है यानी कि शॉप के ऊपर है, टेरेस पे हो गए या रूफ पे हो गए तो वो टच हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 7 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कितनी है? सबसे ज्यादा डायरेक्शन में है 7। 2 है टुवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, अगेंस्ट एंड आउट ऑफ। यूज टू इंडिकेट द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। बिल्कुल स्पेसिफिक, या आप बोल सकते हो यहाँ पर भी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। प्लेस, आई एम गोइंग टू द शॉप। अगर प्लेस के बारे में है तो टू द शॉप, मैं बिल्कुल शॉप पे जा रहा हूँ। एन इवेंट, आर यू गोइंग टू द डांस पार्टी, तो ये भी डेस्टिनेशन प्रिसाइज हो गया ना, डेफिनेट डेस्टिनेशन हो गया। अ पर्सन, आई एम गोइंग टू योर प्रिंसिपल टू कंप्लेंट अबाउट यू। प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ यानी कि डेफिनेट पर्सन हो गया। अ पोजीशन, द किचन इज टू योर लेफ्ट, तुम्हारे लेफ्ट में है, मतलब वो वहीं रहेगा, प्रिसाइज डेफिनेट पोजीशन है। तो एकदम जहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन होती है, एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है, जहाँ पे दिखाते हैं कि भाई इधर है या उधर है, जहाँ पे भी एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है टू का यूज किया जाता है। टुवर्ड्स इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन। डायरेक्शन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये डायरेक्शन है कि उस तरफ है। टुवर्ड्स को हिंदी में भी बोलते हैं तरफ, टू को बोलते हैं को, मतलब लेफ्ट को, राइट को, और टुवर्ड्स को बोलते हैं की तरफ, बाई तरफ, दाएं तरफ, इस तरह से बोलते हैं इसको। शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम होम। यहाँ पे शी हैज स्टार्टेड, ओके, टुवर्ड्स। अब्दुल वॉज रनिंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप। अब यहाँ पे टुवर्ड्स बस स्टॉप की तरफ भाग रहा है, तो दिस इज नॉट प्रिसाइज्ड। प्लीज टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू एग्जिट। प्लीज टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट। टुवर्ड्स योर लेफ्ट मतलब आप जहाँ पे भी है वहाँ से आप बाईं तरफ घूमिए, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, जहाँ पे भी इस तरह का वर्ड आएगा जहाँ पे डायरेक्शन शो किया जा रहा है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ पे टुवर्ड्स आएगा। फ्रॉम, यूज टू शो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कहाँ से वो चीज़ निकली है, स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन यानी कि प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है। शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट बताते हैं। आई हैव लेफ्ट फ्रॉम मुंबई ऑलरेडी, कहाँ पे हमने कहाँ से डिपार्चर किया है? मुंबई से। वी आर फ्रॉम चेन्नई, हम लोग चेन्नई से हैं, यानी कि एग्जैक्ट क्या बता रहे हैं हम, अपना स्टार्टिंग और ओरिजिन बता रहे हैं कि हम लोग चेन्नई से हैं। नेक्स्ट इज ऑफ इज यूज टू इंडिकेट ईदर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम। बीइंग टेकन अवे फ्रॉम तुमसे ले लिया गया, या डाउन फ्रॉम किसी चीज से नीचे। द सेल्समैन टुक द बॉटल ऑफ द शेल्फ। शेल्फ में से बॉटल को नीचे ले लिया, ठीक है, बॉटल ऑफ, ठीक है। द कैट फेल ऑफ द टिन रूफ, नीचे आना, डाउन, तो ये नेक्स्ट वाला हो गया डाउन फ्रॉम एंड अवे फ्रॉम। बीइंग टेकन अवे फ्रॉम, किसी एक चीज से रखी है, वहां से आपने उसको अलग हटा लिया, तो उसके लिए ऑफ आएगा। एंड फेल ऑफ, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो उसके लिए ऑफ आएगा। फॉर इज यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मोमेंट। कहाँ पे यूज डायरेक्शन के लिए यूज होता है? जब बिगिनिंग
ऑफ द मूवमेंट बताना हो, क्या बताना हो, बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, कि ये मूवमेंट कहाँ से बिगिन हुआ। दे विल लीव फॉर होम टुमारो, कब, कल के लिए बताया गया है कि दे विल लीव फॉर होम, होम के लिए, बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट, मतलब अभी ये मूवमेंट शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट होगा, कि कोई एक्शन शुरू होने वाला हो तो उसको बोलते हैं फॉर होम, सॉरी प्रीपोजिशन आती है फॉर। माई सन हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर सिंगापुर, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, मतलब अभी वो पहुंचा नहीं है फॉर सिंगापुर, सिंगापुर के लिए, इसका के लिए हमें अर्थ आता है फॉर का। अगेंस्ट, यूज टू इंडिकेट कॉन्टैक्ट और प्रेशर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट या प्रेशर किससे होता है, अगेंस्ट से शो होता है। सोना लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे अगर आप अगेंस्ट लगाओगे, अगर मैं ऐसे इस तरह से ऐसे खड़ी हो जाऊँ यहाँ पर, तो ये क्या है, मीन्स द इक्वल प्रेशर इज ओके, द बोर्ड इज गिविंग द प्रेशर टुवर्ड्स माई साइड and I am giving the equal side, means one side is having the equal reaction, जो हमारा प्रिंसिपल है वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। Father put the box against the wall, तो यहाँ पे क्या हो गया, contact, I am in the contact of the wall, and pressure against the wall, put the box against the wall, यानी कि उसके उनके पास रख दिया, बॉल से कॉन्टैक्ट में रख दिया, बॉल के बिल्कुल पास में जब रख दिया इस तरह से, तो अगेंस्ट द वॉल बोला जाएगा जब आप दीवार के पास कोई चीज़ रखते हो। नेक्स्ट इज आउट ऑफ, यूज्ड टू इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम, आउट ऑफ मतलब कहीं से निकलना। आलोक वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर आया। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस से बाहर निकलना जरूरी है। सो दीज वर द 7 फॉर द डायरेक्शन, 2 टुवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, अगेंस्ट एंड आउट ऑफ। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू दैट। प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट में 6 तरह की प्रिपोजिशंस होती हैं, आपकी होती है थ्रू, अक्रॉस, इनटू, ऑनटू, अलोंग, इन, ऑन, by and up, down. These all 6 preposition are used for the movement. आपके एक कम है इसमें डायरेक्शन से I'm so sorry through, across, used to show the movement one point to the other, मतलब through या across मतलब होकर जाना, through या across आप क्या बोल सकते हो, होकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह होकर जाना, यानी कि इसमें क्या होगा, जो वन पॉइंट होगा, मतलब मूवमेंट फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना था। हंटर्स वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट एकदम नहीं आ जाएगा, आपको फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट इज हैविंग द डिस्टेंस, ठीक है। वी वेंट अक्रॉस द रोड, रोड के साथ साथ चलना, रोड ऐसे जा रही है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग अक्रॉस, वन पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहे हो, तो क्या हुआ, अक्रॉस द रोड जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरी तरफ। इनटू यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ गोइंग इनसाइड, किसी के अंदर जाना। वी गॉट इनटू द सिनेमा हॉल, इनटू का मतलब आप किसी भी सरफेस या हॉल के अंदर चले गए हो, ठीक है, कवर हो गए हो आप, उसको बोलते हैं इनटू। Onto used to show the movement on an object, ऑब्जेक्ट के ऊपर। The coin rolled onto the pavement, सरफेस के ऊपर, onto the pavement। टू क्यों लगा रहे हैं, मूवमेंट दिखाने के लिए कि जो कॉइन है वो अभी भी मूवमेंट में है, अदरवाइज आप सिर्फ ऑन लगाओगे तो यहाँ पे पता होगा कि कॉइन वहां पे पड़ा हुआ है, ऑन द पेवमेंट। ऑन टू का मतलब है कि कॉइन इज मूविंग, इट्स इन अ मूविंग स्टेज। Along is used to show the movement that is adjacent in line, एडजेसेंट इज कॉल्ड, वी वर वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर। एडजेसेंट आप ऐसे पैरेलल बोल सकते हो, ये ठीक है, ऐसे जैसे कि ये आपकी रिवर है, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, एडजेसेंट मतलब उसके साथ चलना, पैरेलल चलना, तो वहां पे अलॉन्ग लगाते हैं। इन, ऑन एंड बाय यूज्ड टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ द, जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। दे ट्रैवल्ड इन अ शिप, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दे ट्रैवल्ड इन अ शिप फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज ट्रैवलिंग ऑन फुट, ये भी आपका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन की, भाई पैदल चल रहे हैं तो वो मूवमेंट बता रहे हैं ट्रैवलिंग का। वी केम बाय बस, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से, इन भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑन एंड बाय, ठीक है, ये सारे किसके लिए आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अप एंड डाउन, यूज टू शो द मूवमेंट अक्रॉस एंड अपर और लोअर लेवल। अप एंड डाउन क्या शो करता है, मूवमेंट, मूवमेंट में है, ये भी मूवमेंट में। अक्रॉस एंड अपर और लोअर लेवल, किसी भी ऊपर या नीचे के लिए, ऊपर के लिए अप आएगा, डाउन नीचे के लिए आएगा। रोमी एंड सूजी climbed up the mountains as a challenge, climb up, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, mountain as a challenge, यहाँ पे up and down क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे भी across, यानी कि आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहे हो। They came down from Vaishno Devi temple as fast as they could, they came down यानी कि they are also coming down from one point to another point। so यहाँ पे एक across या process, जहाँ पे भी period का या उसका सेंस आता है, वहाँ पे क्या आता है, up और down। I hope it is clear।
अब हम प्रीपोजिशन के कुछ रूल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगी दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर दिस वीडियो व्हाट यू नीड टू जस्ट कीप इन द माइंड, जस्ट गो थ्रू द टेबल. कितने तरह की प्रीपोजिशन होते हैं, फॉर्म्स आर नॉट नीडेड. एक बार आपने पढ़ लिया दैट्स ओके, ठीक है. नो नीडेड ऑफ फॉर्म्स को गोइंग आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपके लिए कोई इस तरह का नहीं आ रहा है कि जस्ट फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस, ऐसा कोई भी नहीं है. बट टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक प्रीपोजिशन इट इज़ यूज्ड ना इन डिफरेंट काइंड्स, बहुत अलग अलग तरह से यूज़ की जा रही है. मतलब वो मूवमेंट में भी आ रही है, डायरेक्शन में भी आ रही है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच नीडेड उसके रूल्स जाना कि वो किस तरह से आई है, किस तरह से यूज़ की गई है. सो फॉर दिस प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल एंड इट विल डेफिनेटली help you and we will meet with the next video with the same topic of preposition.